Hi everyone. So when it comes to NABARD Grade A Phase 1 preparation, one of the most common problem is that Phase 1 syllabus is not defined in the notification by NABARD. So that leads to a lot of chaos. People are not able to decide what to do, what not to do, what is more important. So we are not able to decide on many of these things which can take our preparation to another level. So in this video, what we will do is we are going to discuss the syllabus of entire set of subjects that are there in Phase 1, and along with syllabus we will also let you know कि ऐसी कौन सी चीजें हैं उस सिलेबस में जो आपको फोकस करनी है. सो दिस इज गोइंग टू बी रियली क्विक वीडियो बिकॉज वी हैव टू कवर 8 components, but I'm sure that this is going to give you a lot of value add to your preparation. So without wasting any time, let's discuss. So I'll start with the merit sections first: ESI, ARD, GA, and then decision making, that is non-merit sections will start. So I'll take on 4 sections: ESI, ARD, GA, DM, and then Vishnu sir will take basically quant, reasoning, English and computer. So let's start with ESI preparation. Now for ESI preparation, the syllabus for phase 1 is not given in the notification. But as it has been seen from the previous year papers कि जो आपका phase 1 का syllabus है वो जो phase 2 का detailed syllabus है वही आपका phase 1 का syllabus है. So there is no difference in that. Right? So अगर आप phase 1 का detailed syllabus देखना चाहते हैं तो phase 2 का syllabus देखिए, उसी से आपको phase 1 का ESI का syllabus पता लग जाएगा. Now this anyways you can see in the notification. There are a lot of chapters like inflation, poverty, environment, multiculturalism, education policies in India, health, human development. बहुत सारे topics हैं आप यहाँ पे देखेंगे. Globalization है, then industrial policy है, right? Population growth and economic development है. So there is a good amount of topics that are there in your syllabus. But the point is, यहाँ पे तो सिलेबस भी गिवन है, बट डू वी हैव टू रीड एवरीथिंग आउट हियर फ्रॉम दिस सिलेबस? द आंसर इज नो. सबसे पहले इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज द ब्रेकअप, राइट? तो वो सिलेबस देख के हमें सिर्फ ये लगता है कि हमें ये थ्योरी पढ़नी है, ये हमें समझना है, एंड this is called kind of static knowledge, theoretical knowledge. But then there are hidden portions that apart from this static knowledge, they are also asking you questions on schemes, reports, and some other areas. And if you see the weightage guys, ESI static 15 marks का है, schemes भी 15 marks का है. ये सबसे important area है आपका. अगर आप इसमें numbers gain कर पाएंगे, then I think you are going to kill the examination. तो मैं इन्हीं दो areas की mainly बात करूंगा यहाँ पे, because these are the most important areas to be focused upon. तो अगर मैं ESI static की बात करूं, again you are not required to read all the chapters that I showed you on the first screen right here. इतना कुछ आप नहीं कर पाएंगे, जरूरत भी नहीं है, because if you see the past year questions, many a times the questions have been asked from these chapters, and these chapters are also important from the understanding of core economics. Even if you want to understand current affairs, if you would have understood these 5-6 chapters, you can understand the current affairs easily. तो ये तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं. क्या इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे? आएंगे, पक्का आएंगे, बट आई थिंक द मोर फोकस नीड्स टू बी पुट इन हियर. दिस चैप्टर नीड्स टू बी डन हाई ऑन प्रायोरिटी. आफ्टर दैट यू कैन टेक ऑन अदर चैप्टर्स. उनमें मे बी इफ नॉट डिटेल्ड यू कैन जस्ट गिव वन cursory look at the basic concepts and that shall be enough. और अगर टाइम है फिर तो आप सारा ही करें, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट स्कीम्स, which I told you is worth 15 marks. Government schemes में now there is a pattern that you need to learn. First is which government schemes to do which are related to your syllabus. Clear cut. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अगली स्लाइड में. If you see here, समग्र शिक्षा, the question is asked from समग्र शिक्षा government scheme. Why it has been asked? Because if you see here, education policy is in your syllabus. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, again this is related to educational policy in India, and this is also related to gender related topic which is in your syllabus. Then प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, this is basically related to poverty alleviation which is in your syllabus. So government schemes हमें वही पढ़नी है जो हमारे syllabus से मैच होती है, हमारे syllabus से relate होती है. That is going to cut down your effort by I think at least 20-30% when it comes to coverage of schemes. Next is which schemes to cover in terms of timeline. Now there is a misconception that they are asking gold schemes. They are not asking gold schemes. Rather, they are asking schemes
which are in news in the past, say 3 months or 5 months. For phase 1, I would say 3 months is minimum, but go for 5 months. For phase 2, 6 months is ideal, 9 months is ideal, but 6 months is the minimum. But anyway, so schemes which are in news in past 3 months or 5 months are of high importance to you. Now, what do I mean when I say news? In news means that they are being covered in media because they have been updated, they have been launched, they have been criticized, they have been appreciated for whatever reason. ठीक है, तो जो भी स्कीम न्यूज में हमें वो पढ़नी है. तो जैसे कि समग्र शिक्षा जो आपका क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर नाबार्ड में, दैट वाज ऑन पीआईबी. इफ यू open this link, I'm not able to open this link right now. Just let me open this link. So this is a link on PIB. If you see, Samagra Shiksha scheme is on news on 4th of August. You can see the date here. On PIB, this is on news on 4th of August, and your exam was on 18th of September, I think, last year. तो ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं स्कीम्स में से, ऑल दी स्कीम्स आर आइदर इन न्यूज ऑन पीआईबी और हिंदू और एनी अदर मीडिया चैनल, बट दे आर ऑलवेज इन न्यूज. दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम इट. ठीक है, तो अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा क्या न्यूज में है? तो वही एफर्ट है. वी हैव बीन पुटिंग दैट एफर्ट फॉर यू. वी आर कंपाइलिंग ऑल द स्कीम्स व्हिच आर इन न्यूज इन द स्कीम स्टैक. ठीक है, वो आप हम पे छोड़ दीजिए. अगर आप खुद स्टडी कर रहे हैं, सो दैट हैज टू बी डन थॉरली स्कैनिंग पीआईबी एंड हिंदू ऑन डेली बेसिस. और ये dimensions are mainly they will ask you questions on these lines. Maybe they will give you a paragraph and they will ask you identify the scheme, who are the beneficiaries, which is ministry, which is head of that scheme, launch year, funding pattern, center और state का क्या division है funding में, what are the objectives, what is the budget allocation under the union budget, any current development in that scheme, tagline of that scheme, associated company. Sometimes Facebook, Google are being associated with these schemes for better implementation. Associated brand ambassadors, कोई brand ambassador associated हो, restructuring or amalgamation. Sometimes schemes are further broken down into multiple schemes, or 3 or 4 schemes are amalgamated into one scheme. That structuring or amalgamation you should also be clear about. Now moving on to ARD preparation, guys. Again, ARD में if you see the weightage 25 static marks and 8 schemes. So I'll try to decode the syllabus for static. And the schemes part, we will not discuss reports and others because this is very minute. Let's focus on the main areas. Again, for ARD static, the syllabus for phase 1 is the same which is given for phase 2. तो आप नोटिफिकेशन में जाइए, जो भी phase 2 का syllabus है उसी को phase 1 का syllabus मानकर you can go through it, that what is the detailed syllabus. Now coming to the point, there are a lot of topics: soil and water conservation, irrigation, farm engineering, agronomy, forestry, plantation and horticulture, fisheries, animal husbandry. बहुत सारे topics हैं syllabus में, if you will see in the notification. Now, how can you do all these chapters? No need. Again, I am decoding it for you. The most important chapters are agronomy, soil and water, seeds, irrigation, fisheries, animal husbandry, and poultry and plantation and horticulture. The most important 7 chapters, and this is based upon analysis we have done for past 3 years, 19, 20, 21. You can clearly see, for example, soils, 5 question here, 4 question here, 2 question here. Animal husbandry, 2 question here, and here 3 questions, here 5 questions. So all this is based upon analysis, what we are recommending you. This is not just some simple gyan. Right. And if you see the questions, they are very much factual. Urea has highest content of dash percentage. What is the name of male goat that is capable of breeding? My God, they are asking the name of the male goat capable of breeding. तो यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको, but that's the reality, factual चीजें आपको करनी पड़ेंगी. The point I want to make is कि बहुत ज्यादा conceptual understanding की जरूरत नहीं है. बेसिक चीजें एग्रीकल्चर आप पढ़ेंगे, समझ जाएंगे, और वैसे भी क्वेश्चंस फैक्चुअल आ रहे हैं. स्कीम्स भी इसमें वैसे ही है, related to your syllabus, which is mainly Ministry of Agriculture and allied such as fisheries and हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री. उनकी जो भी स्कीम्स हैं वो करनी है, जो भी न्यूज में है वही करनी है, और डायमेंशंस भी मैंने आपको जो ESI में बताई थी वही रहेंगी. नाउ रिपोर्ट्स इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ARD. तो उसमें ये वाली रिपोर्ट्स जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन, नोवेयर इन योर सिलेबस दिस वुड बी मेंशन्ड.
right, on the NABARD website or in the notification, but we are decoding it for you based upon the past year papers. NABARD annual report, Ministry of Agriculture annual report, latest agri census, livestock census, handloom census, census 2011 and SEC 2011. ये सारी रिपोर्ट्स में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं रिपोर्ट्स में से आते हैं, ARD से रिलेटेड. तो इन रिपोर्ट्स को अच्छे से कर लीजिए, फैक्चुअल डेटा ही पूछा जाएगा. आई थिंक द best way to cover these reports is to solve a lot of MCQs on these reports. That is in my opinion the best way. GA पे आते हैं. GA पे अगेन 20 मार्क्स की GA आती है. 2-3 नंबर की स्टैटिक GA रहेगी, लाइक नो नेशनल थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, करेंसी, कैपिटल्स, दैट वी ऑल नो. नाउ कमिंग आउट ऑफ द रेस्ट 17 numbers, which is again very very important. So here either they will ask you something from current affairs or ESI or ARD, like any scheme or any report, but apart from that they will also ask you questions on these things, right, which is a journal GA, journal banking GA, books and authors, quotes, themes of important days, science and tech, person in news, like awards, appointments and obituaries, then summits, conferences and themes, साइक्लोन्स और हरिकेन जो ये आते रहते हैं यूएस या इंडिया में भी आते हैं, इनके बारे में भी पूछ लेते हैं. कोई नोबेल प्राइज या पीस प्राइज मिला हो, इफ एनी माइलस्टोन हैज बीन अचीव्ड बाय एनी पब्लिक सेक्टर बैंक, स्पेशली RRBs or something, that can be asked. So take a screenshot of these areas and only cover these areas when covering GA. ठीक है, इन्हीं में से पेपर आएगा आपका. Coming on to decision making. Now decision making last year was an area which was really confusing for many, but now we know what is the area, what type of questions they are asking, so I can tell you with more clarity what is to be covered. First of all, decision making as a process, the basics of decision making. Then types of decision making, like strategic decision making, programmed decision making, non-programmed decision making. Then decision making models, right? Then steps in decision making. Then techniques in decision making. Techniques means there are say quantitative techniques, qualitative techniques, वो सारी आपको जाननी रहेंगी. Decision making conditions, certainty, uncertainty, risk, all these are 3 areas under which decision making is being made, as in under separate conditions. Then there are some fringe topics also, motivation, leadership, journal management, communication, others, though they are not directly decision making, but somewhere somehow the concepts that are being used there are related to decision making, so we also have to cover these topics. If you have prepared for RBI, these topics are the same that you have covered there, just revise them. Okay, so now I'll invite VD sir to cover the syllabus, decode the syllabus for quant, reasoning, English and computer knowledge. ठीक है, तो VD sir आएंगे, अब इन 4 sections का भी बताएंगे. And I just want to tell you one thing guys, non-merit sections, they need attention, but do not give too much attention to them at the cost of doing the merit sections. Ultimately merit sections ही पार लगवाएंगे, but you have to also take care, keep a balance that you do not get yourself striked off in the phase 1 list just due to non-merit sections. तो एक बैलेंस बना के चलिएगा. थैंक यू सर. तो अभी क्यूआरई और कंप्यूटर का हम लोग यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं. तो सबसे पहले अगर क्वांट के सिलेबस की हम बात करें तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस रहता है, जिसमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और ये सारे चैप्टर्स रहते हैं. अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए की नोटिफिकेशन को देखेंगे तो वहां पे आपको सिलेबस मेंशन नहीं किया जाता, बट ये हमने किस बेस पे डिसाइड किया है, वो हमने आधार बनाया आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को. तो जितने भी 2017 से लेकर के 2021 तक के पेपर है सबको एनालाइज किया और उसी के आधार पे हमने इस सिलेबस को डिकोड किया. तो ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है, बट एक नॉन मेरिट सेक्शन है तो हमें 100% टॉप नहीं करना है यहाँ पे. तो हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, सबसे पहले ये कट ऑफ देख लीजिएगा अलग अलग ईयर्स में 2017, 18, 19, 20, 21. तो जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो 5 थी आउट ऑफ, क्योंकि 20 क्वेश्चन है तो हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो 5 है. तो आपको यहाँ से 6 to 7 मार्क्स मैक्सिमम प्रिपेयर करके चलने हैं ताकि आप इस सेक्शन से आराम से क्वालिफाई कर लें. ठीक है, तो वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए जहां पे आपको फोकस करना चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा एनालिसिस करके दिया है. ठीक है, 2017 से लेकर के 2021 तक. ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि किन टॉपिक्स को ज्यादा अटेंशन हमें देनी है. उसमें नंबर सीरीज है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंप्लीफिकेशन है
और 2 चैप्टर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, परसेंटेज और रेशियो। ये आपको जरूर कवर करने हैं क्योंकि ये अदर टॉपिक का बेस होता है, ठीक है। तो ये जरूर कवर करनी है, बाकी कुछ टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हैं। दूसरा एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये करने के बाद आपके पास टाइम है तो आप क्या करेंगे, जो अर्थमेटिक के दूसरे टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, इन सब पे डीआई जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। डीआई और थोड़े से डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, वो इनकी अच्छे से आपके कंसेप्ट की पॉलिश कर देंगे और ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इन्हीं टॉपिक पे फोकस करिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं। यहाँ से आपकी जो कट ऑफ है वो आराम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो ये आपका रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस है। फिर से हमने बेस किसको लिया है, पीवाईक्यूज को पूरा एनालाइज किया 2017 से लेकर के 2021 तक। ये आपके टॉपिक्स निकल करके आते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां भी मैंने आपको सबसे पहले ये कट ऑफ देख लीजिएगा, 2017 में 4 मार्क्स है, यहाँ भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के, तो ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती, 4.5 है। तो यहाँ भी आपका जो टारगेट है वो 6 to 7 मार्क्स ही होना चाहिए, ज्यादा स्कोर करके कोई फायदा नहीं है। नॉन मेरिट सेक्शन है तो टॉप भी बन जाओगे तो कोई फालतू का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कौन से टॉपिक है जिन पे ज्यादा फोकस करें, उनमें एक आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, ये सेग्रीगेशन है 2017 से 2021 का टॉपिक वाइज। तो इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है वो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स पे करना है, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ से 14 क्वेश्चन पूछे गए आउट ऑफ 20। लेकिन पजल में ध्यान रखिएगा, आपको ब्लड रिलेशन पे बेस्ड पजल भी करनी है, डायरेक्शन पे बेस्ड भी करनी है। दूसरी पजल फ्लोर वाली, फ्लैट वाली, या आपकी जो हायरार्की बेस्ड है, या आपकी मंथ वाली है, ईयर वाली है, सब करना है आपको। अरेंजमेंट में भी रो है, सर्कल है, सर्टेन पर्सन है, तो सब आपको मिला के डेली एक पजल, एक सीटिंग अरेंजमेंट, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता उसको अपनी रूटीन में शामिल जरूर करिएगा। इसके बाद इनइक्वालिटी और सिलॉक्स, ये 2 चैप्टर भी आपको पक्का करने हैं, और एक कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये 5 चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स और कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप बाकी चैप्टर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। यहां से आपको आपका जो ये सेक्शन है ये भी आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ कमिंग टू इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न रहता है इंग्लिश सेक्शन का कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक भी पूछा जा सकता है, 2 भी पूछे जा सकते हैं, और एक से ही 6 या 7-8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक क्लोज टेस्ट आपका रहता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपकी रहती है, एरर डिटेक्शन पे 5 क्वेश्चन है, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स करके दे देता है, या कई बार किसी वर्ड को बोल्ड करके दे देगा, 4 वर्ड बोल्ड करके दे दिए, उस टाइप से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो यहाँ से टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। तो ये सेग्रीगेशन है टॉपिक वाइज जहां से पूछा जाएगा, बट इसके लिए आपको क्या कवर करना है, सबसे पहले तो कट ऑफ देख लीजिएगा। यहाँ से आपको एक सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि 2021 में 11.25 कट ऑफ है आउट ऑफ 30। तो इंग्लिश पे थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है, अदरवाइज 2020 तक तो ये 40 आउट ऑफ 40 कट ऑफ रही है, बट 2021 में 30 में से 11.25, तो नियर अबाउट आपको 40% मार्क्स चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ से आपका टारगेट 12 to 15 मार्क्स तक होना चाहिए कि इतना मुझे स्कोर करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो की एरिया रहने वाला है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। आपको किन किन चीजों में फोकस करना है, आपका ग्रामेटिकल जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंस, प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवांस वर्ब, ये सारा आपको करना है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, आपकी एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, एग्जाम के अंदर भी आपको ग्रामेटिकल वाला पोर्शन पहले करना होगा, कॉम्प्रिहेंशन वाला बाद में, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन करने में ज्यादा वक्त लगता है, और ग्रामेटिकल अगर छोटे एरर पूछे गए हैं कहीं पे या कुछ भी है तो वो सिंगल लाइनर होते हैं, टाइम कम लगेगा। कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के लिए आप पीआईबी, द हिंदू, इन सब चीजों का सहारा ले सकते हैं। वोकैबुलरी भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। इसके अलावा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडम्स और फ्रेजेस। तो वोकैब के लिए आप रेन एंड मार्टिन बुक आती है, उसका सहारा ले सकते हैं, जहां से आपका वोकैब वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और एफिशिएंसी और एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इन सारी चीजों पे फोकस करिए। ग्रामेटिकल पार्ट भी आपका, कॉम्प्रिहेंशन भी और वोकैबुलरी भी, तीनों को एक साथ लेके आपको आगे बढ़ना है। और कट ऑफ सरप्राइज कर सकती है, बिकॉज लास्ट ईयर 11.25 है, तो आपका टारगेट 13-14 तो मिनिमम यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए ध्यान रखिएगा पीआईबी, द हिंदू, लाइव मिंट, ठीक है, लाइव मिंट, द हिंदू, इन सब उस पर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए,
इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो ये इसका सिलेबस रहता है, ठीक है। टोटल यहाँ से भी क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मेमोरी, ठीक है, ई प्रोम रोम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, जनरेशंस पूछी जाएगी, कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा ये है, डिवाइसेस से क्वेश्चन रहता है, वायरस और हैकिंग, एमएस ऑफिस, ठीक है, नेटवर्किंग से, शॉर्ट कीज, ठीक है, कि कॉपी के लिए क्या यूज करते हैं, इसके लिए क्या यूज करते हैं। इसके अलावा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किन डाटाबेस बनाने के लिए किन सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है, उस पर भी आपको थोड़ी अटेंशन यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो सिलेबस था ये कंप्यूटर नॉलेज का था, और ज्यादा बहुत गहराई से क्वेश्चन नहीं आते, बट आजकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह से पूछने लगे हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो थोड़ा ढंग से प्रिपेयर करके चलिएगा, ठीक है। कट ऑफ भी कभी ज्यादा नहीं गई, 4.5, 4, 4, 3.25, 3.25, तो आई थिंक बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। तो 20 में से 4.54 रहता है, तो 5 to 6 आपका यहाँ से भी टारगेट होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इन टॉपिक्स के पढ़ के ही आप बड़े आराम से, कंप्यूटर लैंग्वेज है, C++, जावा, कोबोल, नॉर्मल चीजें कब इन्वेंट हुई, कौन लेकर के आया, किसका यूज कहाँ किया जाता है, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हिस्ट्री तो बड़े आराम से हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस था नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 के लिए। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, आपको एक आइडिया देगी कि कौन सी रेलिवेंट चीजें आपके लिए और कौन सी इरेलीवेंट है, मेरिट सेक्शन पे कितना एफर्ट लगाना है, नॉन मेरिट सेक्शन पे कितना एफर्ट लगाना है। तो ये कॉम्बिनेशन हमने आप लोगों के लिए बनाया था, जिसका आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।